हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल यारी बाय एमएस। आज बहुत ही स्पेशल कार हमारे साथ में है, Audi Q3। इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड प्लस ओनरशिप रिव्यू आज हम करेंगे। मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं विनीत पांडे जी, वो अपनी कार लेकर आए हैं मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे, और आज उनका 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और देखिए पूरा का पूरा ओनरशिप रिव्यू। विनीत, Hi. हाउ आर यू सर? I am very well. Thank you so very much. It is a pleasure to be here with you. I know you are a car enthusiast and so am I, and I think we'll have a great time together. थैंक यू वेरी मच सर। तो आज Audi Q3 का थोड़ा डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू करते हैं। सो आई थिंक कार तो आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखी होगी और YouTube चैनल पे बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया है, मोटर ऑक्टेन, गगन चौधरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज जो हम करने वाले हैं वो है इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, और थोड़ा ड्राइव करके देखेंगे। मैं अपनी A6 चलाता हूँ, ये मेरी A6 खड़ी हुई है, तो क्योंकि मैं एक पेट्रोल कार चलाता हूँ तो आई थिंक एक डीजल कार चला के मुझे आइडिया हो जाएगा कि Audi Q3 डीजल चलने में कैसी है और दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। इंजन पावर के मामले में दोनों सिमिलर ही हैं, बट ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर किस में बेटर है वो हम इस वीडियो में पता करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखिएगा, और कुछ इनसाइट्स आपको ज़रूर मिलेंगी जो आपको लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स start the video. So we'll begin the video with a small introduction of Mr. Vineet Pandey, and I would like to hand over the mic to him for a brief introduction. Hey, hi all. I hope you all are doing great. So this is Vineet here, and I am a car lover. Just as we've come on this platform, a bit of my introduction here. So I work in the banking sector. So let's talk about the car now. I have my Audi Q3. I've been driving it for a good 6 years now. The experience has been fantabulous. I've had a tremendous pleasure in driving this car. I think it in the entry segment, this is one of the best cars one can actually own. So Vineet bhai, tell me, ये कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर्स आपने इसको चला दिया है? देखने में आपकी कार वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। So well, I bought this car in 2017 May, and I think the car has done about 47,000 plus kilometers. अच्छा, almost 50,000. Almost 50,000 kilometers I've driven it, and I think the experience has been wonderful. I've taken it on roads, off roads, अच्छा, and because I love traveling, I keep on going to the hills, and I think this is my go-to car. Though I have another car, but I always prefer my Audi Q3 over any other car. विनीत भाई, Audi के अलावा कौन कौन सी कार हैं आपके गैराज में? So I've got a Honda City, I've got a Merc, and yeah, I've got an i10 as well. So yeah, these are the cars that I own right now. Awesome, awesome, awesome. That's great. You're a rich man, by the way. So, तो हाँ, कार की बात करते हैं सर। आपने बताया डीजल, it's a diesel car, right? It's a diesel car, yes. It's a diesel car, and it's the premium plus variant with the sunroof, and yeah, it's got the ride, the build quality, everything is so very nice. You feel the comfort, you feel the safety, Okay. and yeah, I mean it's good. It's good to be driving this car. Great sir. विनीत भाई, टेल मी, कार में ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में मुझे 2-3 शब्दों में बताइए, 2-3 लाइनों में बताइए कि ओनरशिप एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? Well, having driven it since 2017, I think हमारी Audi. हिंदी की ऑडियंस भी है, उनके लिए ही बताइए आप। अच्छा, हमारे लिए यस ऑफ कोर्स। तो Audi की जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है बहुत ही बेहतरीन रही है। जो Audi एज अ कंपनी जो अपने कस्टमर्स को देती है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, they are, I think, at par with any other German makes, and I think मुझे कभी भी कोई भी परेशानी हुई है गाड़ी को लेके, it's just been a phone call away, and I get the car picked up. लोग आते हैं, देख के जाते हैं, कर देते हैं, and feedback mechanism and everything sums up as a very great experience for me. Awesome, that's a very good thing sir. Vineet bhai, tell me something that इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है? मैंने सुना है Audi की सर्विस, सुना क्या है, मेरे साथ खुद भी I mean ऐसा ही होता है, मैं सर्विस कराता हूँ तो मेरा बिल आता है करीबन 50-55 हज़ार का। हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन बीइंग अ डीजल Audi Q3
आपका कितना एक्सपेंस वगैरह आया था सर्विस में? सो हमारी गाड़ी की जो सर्विस होती है वो साल में एक बार होती है, और जो एक साल में जो सर्विस होती है वो तकरीबन 35,000 से 50-60 हज़ार के आसपास लग ही जाता है, क्योंकि सालाना जब गाड़ी जितनी चलती है उस हिसाब से मेंटेनेंस भी खोजती है। तो आई थिंक एक साल में जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो करीब आप 55-60 हज़ार मान के चलिए, वो तो लगनी ही लगनी है। ओवर दी अबव कुछ और अगर हो, इंश्योरेंस अगेन वो भी एक बहुत बड़ी हिट पड़ती है साल में एक बार। हाँ जी। 60-70,000। सो मेरे ख्याल से एक शौक़ था, वो शौक़ बस पूरी हो रही है, और शौक़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। राइट जी बिल्कुल। वेरी वेल सेड सर। विनीत भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शौक़ एक बड़ी चीज़ है, और आई थिंक इसी शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं ऑडी में, जो कि मैं काफ़ी कम चलाता हूँ। एक दो चीज़ें आपसे और पूछना चाहूँगा विनीत सर, आपकी ये Q3 एवरेज कितनी देती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंडिया में काफ़ी पूछा जाता है कि ऑडी माइलेज कितनी देती है? सर सिटी में माइलेज उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी की माइलेज इन द सिटी, क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है, ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए बहुत कम रहती है, 12-13 के आसपास देती है। बट अगर मैं टूर्स पे जाता हूँ, हाईवे वगैरह हिल स्टेशंस पे जाता हूँ, तो मुझे 18-19 की माइलेज बिल्कुल मिली है ऑडी से, एंड आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी इज़ अबाउट 65 लीटर्स की कैपेसिटी है। सो आई थिंक एक टैंक में मेरी हो जाती है। Got it, I got the answer and I think the audience would have also got the answer. इसमें अभी तक कोई काफ़ी मोटा खर्चा है जिसमें आपके 1-1.5 लाख रुपए लग गए हैं किसी चीज़ में? कोई पार्ट चेंज हुआ हो तो इसमें लगे हों? आपने वैसे मोटे खर्चे की बात की है, मोटा खर्चा को मैं अभी तक अवॉइड करते आ रहा हूँ, हालांकि इसमें सस्पेंशन की काम की आवश्यकता आ गई है अब। चूँकि ट्रिप्स पे जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गाड़ी लगती है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वोरेशियस ड्राइवर। सो दो आई लव द कार, I think I handle it in a way that I should normally not be handling. So suspension की requirement है इसमें, and I've got an estimate of about 90,000. I'm sorry. So I think I'll get it done in the near future. यार ये तो पैसे वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं सर, हमारे ऐसे गरीब लोग कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे? कहीं ना कुछ करके कर ही लेंगे। जब इतनी बड़ी शौक पाली है तो आई एम श्योर इसे तौर तरीके भी मिल जाएंगे हमें, इसे कैसे मैनेज करना है, कैसे फंड्स निकालने हैं इसके लिए। राइट। विनीत भाई एक बात और बताइए, मेरे को ये बताइए कि कभी आपको ये कार लेके ऐसा लगा कि मैंने इतनी एक्सपेंसिव एक हाथी पाल लिया है और इसका बहुत खर्चा है, तो कभी ऐसा फीलिंग आया आपको? वेल, जैसे हमारी पहली EMI कटी थी तो हमें एक सेकंड के लिए धक्का लगा था, हम ये सोच बैठे कि ये इतनी बड़ी EMI किस चीज़ की कटी है। फिर हमारे घर वाले ने बताया कि अरे बेटा तुमने जो हाथी पाल रखी है ये उसकी EMI है। मैंने बोला ओ अच्छा, शौक़ तो करना था पूरा, तो हमने ले लिया। बट ठीक है, EMI तो एक तरफा होती है, बट यू गेट द कंफर्ट आउट ऑफ व्हाट यू बाई। चीज़ें एक्सपेंसिव होती है तो कंफर्ट भी उसी तरह से मिलती है, और आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड भी ऐसे ही चलते रहेगा। श्योर। ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ विनीत सर। Audi Q3 के अंदर मुझे 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप बोलेंगे कि यार ये चीज़ें तो बहुत ही ऑसम है और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगी। वेल, इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, कंफर्ट बहुत ही अच्छी है, कंफर्ट इसकी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। मैं एक बार जयपुर हाईवे पर ट्रैवल कर रहा था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एंड मेरी गाड़ी की स्पीड रही होगी कुछ 120-130 के आसपास। अचानक से सामने एक ट्रक, चूँकि बारिश बहुत तेज़ थी तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा था ठीक से, तो एक ट्रक टर्न कर रही थी, और मुझे जब अचानक से दिखा मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए, and the car stopped right there and then, and that is the day I fell in love with the Audi Q3. Oh, that's great sir, that's great. Okay, अच्छी बातें बहुत हो गई सर। 3 चीज़ें मुझे ऐसी बताइए जो आपको लगता है Audi को इसके अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है? आपने कितने की खरीदी अगर आप मुझे बता सकते हैं तो सर? मैंने ये तकरीबन 40 लाख की ली थी। Okay.
वेल तीन चीज़ें इसमें जो ऑडी को डेफिनेटली इम्प्रूव करनी चाहिए. सबसे पहले इसकी जो स्पेस है, ये बाहर से गाड़ी बहुत बड़ी दिखती है लेकिन अंदर से इट इज़ क्वाइट अ कॉम्पैक्ट कार. 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं. बट अगर लगेज की बात करें हम, तो लगेज इसमें प्रॉपर्ली नहीं अटेगा अगर आपके 3 लार्ज साइज सूटकेस हों इसमें तो. So I think that is one drawback. That is a major drawback. So boot space definitely should be increased. इसमें थोड़ा बहुत. वैसे the car is very good, but over the years there is a certain kind of a noise in the engine that's started coming now. So I think this is something which is not there in other German cars, but इसमें ये problem मैं notice कर रहा हूँ. गॉट इट सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर. आपने सही पॉइंट्स बोले. मेरा भी जो ओवरऑल इसका अंडरस्टैंडिंग और अभी तक रिव्यू रहा है वो मुझे यही लगा है दैट इसमें पीछे का स्पेस थोड़ा कम मुझे लगा है. ये जो ऑडी हम देख रहे हैं, ऑडी Q3, ये 35 TDI क्वात्रो है. क्वात्रो का मतलब होता है 4 व्हील ड्राइव, और ये है बेसिकली एक 2000 cc इंजन जो प्रोड्यूस करता है रफली 150 bhp विथ 380 Nm टॉर्क. और बिकॉज ये डीजल कार है तो क्वाइट टॉर्की होती है. इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अमेजिंग होता है, जैसे कि विनीत भाई ने बताया भी. इसके अंदर जो बूट स्पेस है दैट इज़ 460 लीटर्स. विनीत भाई एक बार बूट स्पेस आप ओपन करके दिखाएंगे, हम अपने ऑडियंस को दिखा देते हैं कि बूट स्पेस कितना है. ओके, तो ये कार का बूट स्पेस है. ये पीछे जो आप ट्रे देख रहे हैं ये एक पार्सल ट्रे है जो इसको कवर कर देती है. तो ओवरऑल आई थिंक बूट स्पेस ओके है, लेकिन अगर 4 लोग ट्रैवल करेंगे तो और बड़े सूटकेसेस हैं तो उनके लिए, जो विनीत सर ने भी बोला था, थोड़ा सा टाइट हो सकता है. तो विनीत भाई इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक बूट आता है? नो, इलेक्ट्रिक बूट नहीं है. दिस इज मैनुअली. अच्छा, मैनुअली कंट्रोल्ड. ओके, कूल. बंद कर दीजिए सर. मतलब इतनी एक्सपेंसिव कार में तो इलेक्ट्रिक बूट आना चाहिए. एग्जैक्टली फॉर द प्राइस जो हमने दिया है इस गाड़ी के लिए. आई थिंक अ कपल ऑफ थिंग्स दैट दे शुड हैव गिवन. सबसे पहले तो नेविगेशन आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है. बिकॉज आप कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, यू आर नॉट वेल वर्स विद द रोड्स. आपको पता नहीं है दूसरे शहर में आप जा रहे हैं तो क्या. सो आई थिंक नेविगेशन शुड हैव बीन अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ दिस कार. साथ ही साथ USB. सो देयर इज़ नो अपेरेंटली नो USB कनेक्टिविटी. सो जब आप Audi Q3 जब मैं ले रहा था तो आई हैड टू सेपरेटली परचेज अ केबल विच दे कॉल्ड इट एज एन MMI केबल, जिसकी कॉस्टिंग 7,000 रुपये थी, और उस केबल द्वारा आप अपनी USB को और फ़ोन को कनेक्ट कर सकते थे. सो 40 लाख की गाड़ी में ये एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है. यार ये सब तो आजकल 15-20 लाख की कार में भी आ जाते हैं. खैर एनीवेज, आई थिंक उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी इतना कॉमन भी नहीं था. तो हम बात करें 2017 की, तो आई थिंक 2017 में शायद ये फीचर्स इतने पॉपुलर, इतने कॉमन नहीं थे, तो शायद इसलिए कार में नहीं है. तो अभी Audi Q3 डिसकंटिन्यू हो चुकी है सर, राइट? Yes, Audi Q3 was discontinued. They are coming up with a new variant very soon. I think साल के अंत या नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रॉब्ली बाय फेब या मार्च लॉन्च हो जाएगी. ओके, अंडरस्टूड सर. चलिए कार के अंदर बैठते हैं सर, एंड देन विल जस्ट टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ द कार. This is how the dashboard looks like of the Audi Q3. This is a 7-speed DSG gearboxed Audi Q3, and overall I think the look and feel of the cabin looks pretty solid, pretty good. Has beige interiors, has a good sunroof. It's called panoramic sunroof. तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. प्रीमियम केबिन है. दरवाज़ा मैंने खोला तो दरवाज़ा ऑल्सो इज़ क्वाइट गुड. आई मीन इट इज़ नाइसली हैवी, ईजीली बंद हो गया है, बीच में अटकने वाला नहीं है. सो वेरी सॉफ्ट एंड रियली गुड. ओवरऑल द वेट, द हिंजेस आर राइटली प्रोग्राम्ड. 2-3 स्टेजेस में दरवाज़ा खुलता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड. एंड नाउ वी गेट इनटू द केबिन. कीज़ दिखा रहे थे, मुझे दिखाएंगे प्लीज़? Please open the gallery to view it. This is the key of the car. So this is again, I think, यार इसमें start stop button आना चाहिए था rather than this kind of a key which you get in i20s. Yes, absolutely. वैसे Audi Q3 में चाहे आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले लें या बेस वेरिएंट ले लें,
फॉर सम रीज़न इन लोगों ने ये चाबी ही रखा और स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया. आई थिंक दैट वुड नॉट हैव कॉस्टेड मच फॉर एन Audi, Not at all. फॉर अ ब्रांड लाइक Audi. बट ठीक है, चलिए हम पुरानी तरीकों से स्टार्ट करते हैं आज भी. श्योर सर. ग्रेट. तो स्टार्ट करने की आई थिंक विनीत भाई जरूरत नहीं है. ओवरऑल क्या ये जो सिस्टम है सामने टच स्क्रीन है या फिर ये टच स्क्रीन नहीं है, दिस इज मैनुअल. मैनुअली कंट्रोल? Manually controlled. So this is the Audi multimedia, and from where you can control all the features of the MMI system. Got it sir. Okay. और ये मैनुअल में तो आती नहीं होगी सर, ऑटोमेटिक? मैनुअल में नहीं आती है, ये ऑटोमेटिक में ही आती है. Okay, great. So this is the Quattro badging with a silver plate over here. This looks pretty good. I think ये टेक्नोलॉजी मॉडल के अंदर ये पूरा वुडन ट्रिम आता है जो कि Yes, थोड़ा you're right. या थोड़ा सा और प्रीमियम लगता है. बट ओवरऑल कार में बैठने के बाद, और क्योंकि मैं एक बहुत ही नीची सेडान चला के आया हूँ, तो यू सिट अ लिटिल ऊपर. आई मीन थोड़ा सा आप एक ये नहीं बोलेंगे फुल फ्लेजेड SUV, बट येस ओवरऑल यू सिट quite high on the ground, which is a very good feeling. And the seats are pretty comfortable. The leg space is good. Thigh support is also very good. It doesn't feel uncomfortable at all. Overall ये दरवाजे हैं, थोड़ा देखने में दरवाजे छोटे लगते हैं, बट ठीक है, आपके लिए इनग्रेस के लिए दरवाजे बिल्कुल ही उपयुक्त हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उसमें. यहाँ पर एक हैंड रेस्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको स्टोरेज के लिए आई मीन थोड़ी जगह दी हुई है. एंड ओवरऑल आई थिंक व्हेन यू सिट लाइक दिस इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल. और हम पीछे जाके देखते हैं स्पेस वगैरह कितना है. सर कुछ स्पेशल फीचर है कार के अंदर जो आप बताना चाहेंगे? स्पेशल फीचर तो नहीं है, इसकी इंजन ही इसकी खासियत है. ओके. क्योंकि इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, इनकी पिकअप बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, एंड दी ओवरऑल प्रेजेंस ऑन द रोड इज व्हाट इज देयर. सो अगर कल मेरे से कोई पूछता है कि आपके गाड़ी में ये फीचर नहीं है, वो फीचर्स नहीं है, आप यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई गाड़ी चला के देख ले बस. ओके. सो आई थिंक द क्वाट्रो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज द की ऑफ दिस कार. ऑसम. और इसमें 360 डिग्री कैमरा भी नहीं आता? 360 डिग्री कैमरा भी नहीं है. वो 360 डिग्री कैमरा अगर आपको लेना था तो यू हैड टू टेक द क्वाट्रो टेक्नोलॉजी एडिशन, जिसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. एडिशनल एक रेयर व्यू कैमरा था और जो बोस के सराउंड सिस्टम थे उसमें, दैट वाज द ओनली डिफरेंस. और इसमें इस वाले वेरिएंट के अंदर कितने स्पीकर सिस्टम आते हैं? इसमें 6 स्पीकर्स हैं. 6 स्पीकर्स. 6 स्पीकर्स हैं, बोस के स्पीकर्स हैं, बट सब वूफर जो है वो टेक्नोलॉजी वेरिएंट में था अलॉन्ग विद द रेयर व्यू कैमरा. अंडरस्टूड. वेरी वेल. एक चीज़ और अभी नोटिस की हमने कि जो पैसेंजर साइड है वो एक मैनुअली एडजस्टेड साइड है, और सिर्फ ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक आती है. इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल. ओके. अब हम पीछे चलते हैं और पीछे बैठ के देखते हैं कि पीछे स्पेस कितना है. तो ओवरऑल अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ऐसे इसका पीछे का बेंच नज़र आता है, जो कि देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है. एनीवेज, लेकिन बैठ के देखते हैं तब हमें पता चलेगा. ओके. बैठने में कंफर्टेबल है ओवरऑल. सीट्स आई थिंक मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी. मैं आगे भी बहुत कंफर्टेबल था, मैं पीछे भी बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ ऑनेस्टली. तो अगर आप नी रूम की बात करें तो नी रूम करीबन 6 से 7 इंच अभी भी बचता है आफ्टर मी सिटिंग कंफर्टेबली. एंड हेडरूम इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट. हेडरूम भी मुझे लग रहा है कि आई मीन कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच. एंड या बीच में हम्प है, तो बीच में बैठने वाले पैसेंजर्स को आई थिंक थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है. वो यहाँ पर तो फीट नहीं रख सकते हैं, एक पैर आपको उधर रखना पड़ेगा, एक पैर आपको इधर रखना पड़ेगा, जिससे थोड़ा सा स्पेस इंट्रूजन हो सकता है फॉर पैसेंजर. सो 2 के लिए, सो बेसिकली 2 लोग आगे बैठ सकते हैं, 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली. उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है. विनीत भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो रादर देन दिस बीइंग कॉल्ड अ 5 सीटर, मेरे ख्याल से 4 लोग इसमें कंफर्टेबली, 4 एडल्ट्स कैन कंफर्टेबली सिट एंड फिट इन हियर. लंबे लोग भी आ जाते हैं. सीट थोड़ा अगर हम आगे करके एडजस्ट कर लें तो मेरे ख्याल से a person who is 6 feet tall can also fit in easily. Very well, sir. So I think मेरे ख्याल से इसमें that is also one of the reasons जो बीच में armrest है वो नहीं दिया है.
क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट नहीं है जी जी सर, आर्मरेस्ट तो होना चाहिए था इसमें, ये तो धोखेबाजी कर दी उन्होंने। धोखेबाजी कर दिया ये इन्होंने। सो ये बेसिकली आर्मरेस्ट इन्होंने इसलिए नहीं दिया, मेरे ख्याल से शायद कोई बच्चे बैठना चाहें तो वो नहीं तो आर्मरेस्ट तो अंदर चला जाता है ना वैसे भी। आर्मरेस्ट अंदर चला जाता है, राइट। ये सेम प्रॉब्लम मेरी Audi A6 में भी है, लेकिन उसमें आर्मरेस्ट दिया हुआ है जिसमें अच्छे कप होल्डर्स हैं एंड यू सिट वेरी वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। Right. तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ ड्राइवर्स कार देन अ शॉफर ड्रिवन कार। शॉफर ड्रिवन कार, एग्जैक्टली। अंडरस्टूड। पर स्पेस ठीक है यार, मैंने इसके बारे में काफी कंप्लेन सुने थे विनीत भाई कि स्पेस पीछे बहुत कम है और आप कि आई मीन लेग स्पेस नहीं है एंड ऑल दैट, बट आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू। देखिए मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है, आई एम 5'7", 5'8", सो आई थिंक आई एम कंफर्टेबल। 6 फीट वाला बंदा भी होगा तो आई थिंक स्पेस तो मिल ही जाएगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कभी कोई तकलीफ हुई है कि यार पीछे बैठ के बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने कंप्लेंट किया है? नहीं, आज तक। इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर से अभी आया था एंड आई हैड 5 adults in the car. So I was driving the car and I had my dad here, I had my uncle sitting in the back, and Alright. I had another uncle who was 6 feet. So I think काफ़ी comfortably हम आ गए थे। पीछे हमारी बूट, हालांकि हमने literally boot space को like we had crammed the boot. Got it. So that was when जब हमने actual usability हुई है इस गाड़ी की। Okay. Right. So it was a great experience. No complaints. अंडरस्टूड सर। ये मैगजीन होल्डर है, ये मुझे थोड़ा सा आउडीज में सही नहीं लगता है। मेरी कार में भी ऐसे नेट दिया हुआ है, नेट दिया इट शुड हैव बीन लाइक कंप्लीटली कवर्ड। ये थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं आउडी, और ये सब Q7 में भी ऐसे ही आता है। आई डोंट नो व्हाई डू दे गिव इट लाइक दिस, बट इट कैन बी लाइक कवर्ड विद अ गुड अपहोल्स्ट्री जो आपने इसमें लगाई है। Exactly. तो So ये I चीज think these are all cost cutting gimmicks. या इसमें पीछे एयर वेंट्स दिए हुए हैं, बट ये पीछे के लिए कंट्रोल अलग नहीं है। जो आप आगे का टेम्परेचर सेट करते हैं वही पीछे भी जाता है, वही टेम्परेचर आपको पीछे मिलता है। तो ये है फीडबैक ओवरऑल। सर ये जो IRVM है ये इलेक्ट्रिक होगा, ये तो मैनुअल नहीं है? बिल्कुल, श्योर ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट साइड के जो मिरर्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। ओके ग्रेट। तो मैं आ गया हूँ Audi Q3 की ड्राइविंग सीट के ऊपर, और ओवरऑल कार में बैठने का लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इट्स एन Audi, इट्स अ प्रीमियम कार, और क्योंकि ये SUV है तो इसका जो ओवरऑल जो हाइट है दैट इज़ प्रीटी गुड। वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़ कि डीजल इंजन का जो नॉइज़ है वो केबिन में बहुत ज़्यादा आता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड। तो आवाज़ बहुत है, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन, कंपेयर टू अ पेट्रोल कार, येस देयर इज सम बिट ऑफ वाइब्रेशन बट नॉट दैट मच, बट आवाज़ एक्चुअली ज़्यादा है। तो आपको पता चलता है दैट यू आर ड्राइविंग अ डीजल व्हीकल। लेट्स गो फॉर अ स्पिन। विनीत भाई जिनकी एक गाड़ी है वो मेरी Audi A6 चलाएंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे उनको क्या डिफरेंस लगा दोनों कार के अंदर, वो वाली कार चला के उनको कैसा लगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे ये कार चला के कैसा लगा। ओके आवाज काफी ज्यादा है। बस मुझे एक बड़ी कंप्लेंट एक ये लग रही है कि इसमें साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, बट पावर अच्छी है, पावर बड़ी ही अच्छी है इसके अंदर। आफ्टर आई थिंक 2000 RPM कार बहुत अच्छे से पुल करती है। टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक है, और लो RPMs में इतनी पावर फील नहीं होती है, लेकिन एज सुन एज यू रीच, अभी मैं 1500 RPM पे हूँ, जैसे ही मैंने पेडल प्रेस किया इट रियली बिकम्स अ रॉकेट, काफ़ी फास्ट हो जाती है। द ब्रेकिंग इज गुड, the braking is nice, and the steering is light. steering ऐसा नहीं है steering heavy है या ऐसा कुछ, steering अच्छा खासा है, कंट्रोल बढ़िया है steering का, आपकी कंट्रोल में कार रहती है, which is very nice thing.
इनिशियली जब आप कार को उठाते हैं तो एक्सेलरेट करते हुए केबिन में नॉइज आती है, विच इज नॉट अ प्लेजेंट नॉइज। ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से मैं खुद एक डीजल व्हीकल प्रेफर नहीं करता हूँ। और जो आपको रिफाइनमेंट और स्मूथनेस अगर आपको चाहिए तो यू विल ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ पेट्रोल कार, या फिर आप बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन लाइक मेबैक्स और Audi Q7 टाइप की कार अगर आप खरीदते हैं। तो अभी मैं कार के बाहर था, जब हमने कार को स्टार्ट किया तभी भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ कार की बाहर भी आ रही थी और केबिन के अंदर भी, चाहे उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन केबिन के अंदर भी नॉइज़ आपको सुनाई देती है। पिकअप बहुत अच्छा है कार में, डीजल की कार है तो बहुत टॉर्की है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, विच इज़ गुड एंड क्वाइट पावरफुल। तो ड्राइव करने में ओवरऑल फील अच्छा है कार में। कंट्रोल्स आपकी रीच में है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजीली सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो। ओवरऑल ऐसा इसका स्टीयरिंग व्हील दिखता है, बीच में Audi का लोगो है, और ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि आपके जो आपका स्पीडोमीटर पैनल है उसको कंट्रोल करने के लिए हैं। ये आपका वॉल्यूम का बटन है, सॉरी ये वॉल्यूम का बटन है, ये अगर आप टेलीफोन पिक करते हैं या सिलेक्शन के लिए वाला बटन होता है। सो या ये जो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है ये बहुत ही छोटी स्क्रीन है, दिस शुड बिकम बिग। जब नई Audi लॉन्च करती है तो ये थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए उनको। तो या ये एक काफ़ी ब्रीफ रिव्यू है अबाउट द कार। या सो वीव ट्राई टू कवर द एंटायर ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ द कार। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। विनीत भाई, आपने मेरी Audi A6 चलाई, मैंने आपकी Q3 चलाई, मैंने अपना फीडबैक रिकॉर्ड किया है। मुझे सिर्फ इसमें ना ये लगा कि इसमें पेट्रोल कार के मुकाबले वाइब्रेशन और नॉइज़ ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक डीजल इंजन जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है, राइट। तो उस वजह से थोड़ी नॉइजनेस तो आपको बिल्कुल महसूस होगी। Right. वैसे इसकी केबिन काफ़ी क्वाइट एंड साइलेंट है। Right. अगर आप विंडोज़ को अप करके रखें तो बिल्कुल बाहर की आवाज़ नहीं आती है, Sure. बट इंजन नॉइज़ आपको फिर भी थोड़ी बहुत तो महसूस होगी। हाँ, और मैं एक्चुअली सारी पेट्रोल कार चलाता हूँ तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी, बट भागने में अच्छी है, ये फास्ट है गाड़ी। हाँ, गाड़ी बहुत तेज़ भागती है, यही इसकी एक खासियत है Right, जो right. बहुत मुझे पसंद आई। Audi A6 चलाई विनीत भाई, आपको वो कैसी लगी चलने में? ओवरऑल उसका क्या फील लगा आपको? बहुत ही स्मूथ थी, इट वाज सो स्मूथ टू ड्राइव एंड बिल्कुल नॉइजलेस कार थी। मुझे लगा कि मैं एक Audi A6 नहीं, मैं एक शिप चला रहा हूँ। वो Okay. इतनी स्मूथ थी। ओके, चलिए, आपको मज़ा आया। ओवरऑल दिस इज़ हाउ आर Audi A6 लुक्स लाइक। तो दोनों कार की अपनी खूबियाँ हैं यार। ये मुझे बल्कि चलने में ज़्यादा फास्ट लगी। जैसे ही ये 1500 RPM पे गया मैं, तो ये उड़ने लगती है कार। उड़ने लगती है, बिल्कुल। राइट। और आपकी जो अपनी A6 थी उसे थोड़ा टाइम लगा मेरे ख्याल से वो एक सर्टन पिकअप पे आने में, जो एक सडन पावर जो होती है, हाँ। वो इसमें बहुत ही बेहतरीन है। राइट। आई थिंक A6 में थोड़ा टाइम लगता है उस पावर पे आने पे। वो 2000 RPM के बाद ज़बरदस्त उठती है। ज़बरदस्त उठती है। हाँ, इतना तो हमने चलाया नहीं, तो आई थिंक वो फील आपने। आई थिंक हमें एक और करना पड़ेगा, एक वीडियो हम करेंगे ज़रूर, जिसमें हम इसे ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। श्योर। एंड वील देन सी द पावर एंड द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग बोथ द Audis। Perfect, sir. Perfect. So, Vineet bhai, thank you very much for such a detailed review about the Audi Q3, the ownership experience. By the way, इसके अंदर ये 17 inches के alloys आते हैं, if you don't know. And overall, the look and the feel of the car is pretty good. ये एक mid-size SUV बोली जाती है, बहुत ऊंची नहीं है. It's not a very high SUV, very tall SUV, but is decent. हेडरूम वगैरह मस्त था, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आई थिंक यार, आई थिंक ओनरशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है ऐसी प्रीमियम कार का। अगर आप में से किसी का लेने का मन है तो आप डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट बाइंग द न्यूएस्ट, द लेटेस्ट वर्जन दैट इज़ अबाउट टू गेट लॉन्च्ड इन सम टाइम। वैसे Audi ने Q2 भी निकाल दिया, लेकिन Q2 तो आप बिल्कुल लेना मत यार, वो तो हैचबैक लगती है, तो वो मुझे लगता है कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इट्स जस्ट
a small car from a very reputed brand, Audi. Q2 is a very small car, so I don't prefer Q2. If you're spending money, then you should get the value as well. So yes, Vinit bhai, as I was concluding, thank you very much for your time Thank today. you. It was a pleasure. I had a wonderful time together. Thank you so much. Sure, we'll meet again and let's Yes, do a please. drag race someday of Oh yes, absolutely. two Audis. Oh yes, we should definitely do that. Sure, sir. Thank you very much. Thank you. So guys, thank you very much for giving your time, for being a patient audience. I think this review of the Q3 will be helpful to people who wants to buy a Q3. And if you're considering an A6, then we've covered the driving experience from an owner of an Audi Q3. Yeah, so as I said, thank you very much for being a patient audience. If you've seen the video till here, do not go without liking the video. And if you're new to the channel, please do not forget to subscribe the channel. When you subscribe the channel, it motivates us to make better videos. We invest a lot of time in making videos. We arrange for cars. We travel to destinations to shoot. So there is a lot of effort that goes, and I hope you will appreciate that. So as I said, thank you very much. Till we meet next. Thank you.